Hello friends, I am Dr. Rajiv Bhosekar, Associate Professor, MD Ayurvedic College, Agra, UP, Uttar Pradesh, Agra, Associate Professor. Today we are taking a new chapter, that is the sixth chapter. It is called Unit 6. The subject of this chapter is Educational Psychology. Educational Psychology. So what are the contents of educational psychology? Is why educational psychology as a discipline, cognitive development, Vygotsky's socio-cultural perspective, Piaget's theory of cognitive development, Bronfenbrenner's social context, self and moral development. These are the contents of today's lesson. This lesson is called Educational Psychology, sixth chapter. The title of first chapter is Educational Psychology as a Discipline. Educational psychology is a branch of psychology that studies how people learn and retain information in educational settings. It mainly focuses on the teaching process of early childhood and adolescence. Key factors of educational psychology. What are the key factors? Goal: to improve quality of teaching and learning. Focus: how people learn in a variety of settings. Methods: use theories of human development to understand individual learning styles and instructional strategies. Application: influence programs, curricula, lesson development, and classroom management. Classroom management. Related disciplines: developmental, behavioral, cognitive psychology. So, educational psychology has a potential to help both students and teachers. It provides important information for educators to help them create educational experiences, measure learning, and improve student motivation. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है कि वो टीचर्स को और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो किस तरह से पढ़ाई करे, किस तरह से जो पढ़ा है उसको याद रखे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग स्टूडेंट्स के मन का स्टडी करते हैं, उनके मन का अभ्यास करते हैं और किस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए जिससे वो पढ़ सके, वो विषय विषय को समझ सके, विषय को आत्मसात कर सके, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं जो वर्क करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो उनको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं, उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क with parents, teachers, and administrators to educate them on best practices for learners. They may also work directly with children to improve their learning outcomes and to improve learning experience. Educational psychologists study the biological, cognitive, emotional, and social factors involved in learning and deepen our understanding of instructional strategies, individual learning styles, and importance of environmental context. तो हर एक का जो इंडिविजुअल पढ़ने का जो स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है और उनका जो ब्रेन है उसका विकास भी अलग अलग प्रकार से होता है। इमोशनल, भावनात्मक, सामाजिक विकास सब स्टूडेंट का अलग अलग होता है। तो इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी में इन सारी चीज़ों को स्टडी करके, इनका अभ्यास करके
जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जो इसको एग्जीक्यूट करता है, वो स्टूडेंट के साथ मिलकर उनसे बात करके उनके प्रॉब्लम को समझ के फिर उस तरह से उनको पढ़ाया जाता है। अब रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग एंड टीचिंग टुडे। रोल क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का पढ़ने में, पढ़ाने में, क्या रोल है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी plays a key role in the learning and teaching process by helping to improve educational outcomes for learners of all ages. हर उम्र के जो पढ़ने वाले लोग हैं, हर उम्र के छोटे बड़े, उनका जो आउटकम है वो अच्छा आना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। जो पढ़ने के बाद जो उसका जो फाइनल आउटकम है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का महत्व यहाँ पे बढ़ता है। टॉपिक्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो विषय है इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, स्पेशल एजुकेशन, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। तो इस तरह के इसमें प्रकार होते हैं जो पढ़ने के जो साधन है उसको इम्प्रूव करके बच्चों को अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्ति में ये मदद करते हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लुकिंग एट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। टेक्नोलॉजी कौन सी अच्छी है जो बच्चे उसको और ज़्यादा इस्तेमाल करके अच्छे से पढ़ सकेंगे, वो देखते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग इफेक्टिव लर्निंग मटेरियल्स। लर्निंग मटेरियल कौन सा सबसे अच्छा है जो उपयोगी है वो देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन, हेल्पिंग स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, वो जल्दी विषय को समझते नहीं, तो उनको स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देकर उनको हेल्प करने का। curriculum development, creating coursework that will maximize learning। हमको कोर्स वर्क क्यूरिकुलम ऐसा तैयार करना है जिससे बच्चे उसको अच्छे से पढ़ सके। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ऑब्जर्विंग हाउ पीपल लर्न इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। क्लासरूम में स्टूडेंट्स कैसा पढ़ते हैं, सबके साथ मिलकर किस तरह से पढ़ते हैं, वो हमको देखना है। अब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, गिफ्टेड लर्नर्स। वो गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्ट होता है कि वो हेल्पिंग स्टूडेंट्स वो आर आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड लर्नर्स। वो लोग जल्दी विषय को समझते हैं, थोड़ा उनका सिक्स्थ सेंस ज़्यादा डेवलप होता है। तो ऐसे स्टूडेंट को, गिफ्टेड लर्नर्स को हम पहचान आइडेंटिफाई करना और उनको भी हेल्प करना। तो इसमें रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो रोल है वो हमने बताया। अब इसमें 5 स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अलग प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट इसमें है। एक है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्सपीरियंशियलिज्म, डेवलपमेंटल। ये इस तरह के इसमें 5 प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट्स है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको हमको पढ़ना चाहिए? तो ये हमको क्या करता है, मदद करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स टीचर्स understand students' needs. Creating teaching strategies helps to create teaching methods and strategies that are tailored to the needs of the students. Designing curricula. Educational psychology helps to create design of curricula and lesson plan. Developing assessment method. Educational psychology helps teachers develop assessment methods to evaluate students' progress. Educating others.
Educational psychologists educate teachers, parents, and administrators on best practices of learners. जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टूडेंट के मन का, उनके स्वभाव का एक स्टडी करके, अभ्यास करके वो टीचर्स को बोलते हैं कि इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से उसको जो है आप उपयोग में लाओ, जो भी आप पढ़ाते हो उसके मेथड्स, तो अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को ज्ञान आत्मसात करने में मदद करते हैं। एड्रेसिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस लर्निंग प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट्स। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, motivating students help teachers motivate students to learn and improve their memory। तो इस तरह से जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो टीचर्स को हेल्प करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चे उसको, वो ज्ञान को प्राप्त करें, तो उसके लिए ब्रेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। Cognitive development is a process by which the brain forms the ability to think, understand, reason, learn, and remember. Cognitive development is the emergence of the ability to think and understand. Cognition is about how the brain works and manifests as behavior। तो cognitive skills जो होता है वो ब्रेन का होता है। Brain is highly interrelated organ and its multiple functions operate in a richly coordinated fashion। तो ब्रेन जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग प्रकार का बुद्धि ज्ञान को हमको मदद करते हैं। तो जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है वो मेमोरी, इमोशंस, इम्पल्स कंट्रोल, मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरिएटल लोब जो होता है ब्रेन का वो कॉग्निशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है ब्रेन का वो विजुअल इंफॉर्मेशन, रिकग्निशन ऑफ शेप्स एंड कलर्स। टेम्पोरल लोब जो होता है वो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ब्रेन जो स्टेम होता है वो कंट्रोल द बैलेंस। सेरेबेलम जो होता है मेंटेन पोस्चर एंड मोटर स्किल्स। तो इस तरह से जो ब्रेन होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। It is the process by which people's thinking changes across the lifespan. It is the growing apprehension and adaptation to the physical and social environment। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बहुत महत्व का होता है, उसमें सोशल इन्वायरमेंट उसका जो है हम लोग मार्क करते हैं। Cognitive development means how children think, explore, learn, remember, solve problems, and figure things out, acquire, organize, decision making, acquiring knowledge, acquiring language, skill, dispositions, which help children to understand the world around them। ये cognitive development। अब जो पिएजेट थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पिएजेट, जीन पिएजेट करके एक शिक्षा शास्त्री हुआ था, उसको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। जीन पिएजेट इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। सो जीन पिएजेट बिलीव्ड लर्निंग अकर्स by an active construction of meaning rather than by receiving it passively। तो जो स्टडी होता है, जो पढ़ाई होता है, उसको अगर समझ के बच्चे पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा उनको याद रहता है। अगर बिना समझे वो सिर्फ पैसिवली पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं या टीचर ने बोला उसको रटन करते हैं, तो वो जल्दी याद नहीं होता और वो अपने समझ में उसके में नहीं उतरता। तो जीन पिएजेट theory focus not only on understanding how children acquire knowledge, but also on understanding the nature of intelligence, the growth and development of the mental abilities,
and capacities which helps an individual to adjust his behavior to the ever-changing environmental conditions are referred to as mental or cognitive development. Four key concepts of Piaget's that are applicable to the learning at any stage are assimilation, accommodation, equilibrium, and schemas. Piaget believed that children are not less intelligent than adults. They simply think differently. तो जो जीन पिएजेट है वो ऐसा विश्वास करता था कि जो बड़े लोग हैं उतने ही इंटेलिजेंट छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े लोगों की तरह छोटे बच्चे भी उतने ही इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ उनमें फर्क ये होता है कि दे सिंपली थिंक डिफरेंटली, वो उनकी सोच उनका विचार सिर्फ अलग होता है बड़ों से, उतना ही, बाकी इंटेलिजेंट में दोनों समान होते हैं, ऐसा जीन पिएजेट का कहना है। अब जीन पिएजेट ने कुछ स्टेजेस बताए, अपने जो बच्चे होते हैं ये चारों स्टेज में से गुजरते हैं। तो पहला जो स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटार स्टेज। सेंसरी मोटार स्टेज, तो बच्चे लोग चार स्टेज में से गुजरते हैं, उसमें जो पहला स्टेज है उसका नाम है सेंसरी मोटार स्टेज। ये 0 से 2 इयर्स तक रहता है। 0 से 2 इयर्स मतलब जन्म से लेके उनकी उम्र 2 साल तक होने तक ये सेंसरी मोटर स्टेज में से बच्चे गुजरते हैं। Infants construct an understanding of the world by coordinating sensory experiences with motor actions. Infants develop basic motor skills and learn to perceive and interact with the environment through physical sensation and body coordination. यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे फिजिकल सेंसेशन और बॉडी कोऑर्डिनेशन से सीखते हैं। At about 8 months, child developed object permanence memory, realize that objects exist even if they are out of sight. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर क्या होता है कि 8वें महीने के बाद बच्चे के अंदर एक 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 वैशिष्ट गुण आता है कि उसको पता चलता है कि जो वस्तु है वो मुझे दिखाई गई है, लेकिन वो दिखाने के बाद भी वो मेरे सामने से हटा दी गई है, फिर भी ये वस्तु है, वो एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने से हट गई इसका मतलब ये दुनिया में से ये चले गई, ऐसा नहीं है। ये वस्तु है लेकिन वो मेरे सामने भी नहीं है। तो अब कोई बच्चों को खिलौना दिखाया जाता है, तो खिलौना देखते हैं बच्चे, उसके साथ खेलते कूदते। 8 महीने के बाद के बच्चे को अगर वो खिलौना अगर माँ बाप दूसरी जगह रख भी देते हैं तो भी उसको याद रहता है कि ये खिलौना है, कहीं रखा हुआ है, मेरे सामने नहीं है लेकिन ये है। तो फिर वो जिद करता है, वो खिलौना फिर मांगता है। तो 8वें महीने में उसको ये समझ आती है। Object permanence, self-recognition. The child realizes that other peoples are separate from them. यहाँ पे और एक उसको समझ आती है, दूसरे लोग मुझसे अलग हैं। Other people are separate from. Emergence of object permanence is the major hallmark of this stage. तो ये जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल तक का, उसमें एक विशिष्ट जो हॉलमार्क है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब है वो वस्तु मेरे सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो अस्तित्व में है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व के में है वो। अब दूसरा जो स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये दूसरा स्टेज का नाम है। ये 2 साल की उम्र से 7 साल की उम्र तक रहता है। 2 to 7, एट द एज ऑफ 2 years स्टार्ट होता है और द एज ऑफ 7 years तक ही रहता है।
This stage begins when child starts to use symbols and language. This is a period of developing language and concepts. So the child is capable of more complex mental representations, words and images, unable to use operations, logical mental rules. तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज के द्वारा, सिंबल के द्वारा ये अपना भाव प्रकट करते हैं. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैपन्स थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन. तो इसमें क्या क्या हम लोग पाते हैं. प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल की उम्र से शुरू होता है, 7 ईयर्स तक रहता है. इसमें हम लोग क्या क्या पाते हैं. सबसे पहला है ईगोसेंट्रिज्म. द चाइल्ड्स थॉट्स एंड कम्युनिकेशंस आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक, दैट इज अबाउट देमसेल्फ. उसके बाद हम पाते हैं एनिमिज्म, ट्रीटिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग वंस. जो खिलौने वगैरह, जो हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो खिलौना वगैरह हम उनको खेलने के लिए देते हैं बच्चों को, तो उनको क्या लगता है कि खिलौना में भी हमारी तरह जान है, इस खिलौने में भी हमारी तरह जान है, ये सजीव है. तो उसके साथ, खिलौने के साथ बात करता है, खेलता है, उसको लगता है ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स है. दे आर नॉट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बट दे आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स. तो जो टॉयज वगैरह है, टॉयज खिलौने, दे आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स. थर्ड जो होता है इसके अंदर गुण, ये स्टेज में जो पाया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन. प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन लिमिटेड एस्पेक्ट of a stimulus, ignoring other aspects. It is noticed in conversation. जो बच्चा बात करता है तो हमको पता लगता है कि वो एक विशिष्ट केंद्र पर कॉन्सेंट्रेट करके बात करता है. तो इन दिस स्टेज किड्स लर्न थ्रू प्रेटेंड प्ले. तो यहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं वो प्रेटेंड प्ले के द्वारा सीखते हैं. वो खेलने के जैसा, कूदने के जैसा एक्शन करते हैं, प्रेटेंड प्ले बोलते हैं, और उसके द्वारा वो सीखते हैं. अब जो थर्ड स्टेज है उसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ये 7 साल की उम्र से शुरू होता है, 11 साल की उम्र तक चलता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 7 एंड एंड्स एट द एज ऑफ 11. तो 7 to 11 ये जो उम्र होता है उसमें बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से गुजरते हैं. थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट. तो यहाँ पे थिंकिंग अभी भी कॉन्क्रीट होती है, लेकिन लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड होती है. इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक. इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज are seriation, the ability to sort objects in an order according to size, shape or any other characteristics. अब ये जो concrete operational stage है, जो 7 years से शुरू होता है, 11 साल तक चलता है, उसमें एक गुण बच्चों में आता है, सीरिएशन. तो उसमें एक एबिलिटी उनके अंदर तैयार होती है कि जो भी वस्तु उनको देते हैं वो उसको अपने साइज, शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उसको वो एक ऑर्डर में रख सकते हैं, या फिर उनको एक ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं. ट्रांजिटिविटी, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप्स अमॉन्ग एलिमेंट्स इन ए सीरियल ऑर्डर. क्लासिफिकेशन, द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर on the basis of common features. Decentering, the ability to take multiple aspects of a situation into account. Reversibility, the child understands that numbers or objects can be changed. Conversation, understanding that the quantity, length or number of items is unrelated to the arrangement or appearance of the object or item. This stage sees the emergence of logical thought. तो इस जो स्टेज का जो महत्व है वो है लॉजिकल थॉट. तो ये स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज
फ्रॉम 7 years to 11 years, इसमें बच्चों में लॉजिकल थॉट आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह चौथा स्टेज है और आखिरी स्टेज है। बच्चे इसमें चारों स्टेज में से गुजरते हैं, उसमें सबसे आखिरी चौथा स्टेज है जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल के ऊपर होता है। फिर 12 साल के ऊपर कितना भी हो, वहाँ पे कोई एंड नहीं है। तो जब तक वो जीता है तब तक ये होता है। इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। द थॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली flexible and abstract, can carry out systematic experiments. The ability to systematically solve a problem in a logical and methodological way. तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेज में वो बच्चा इतना सक्षम हो जाता है कि वो कोई भी प्रॉब्लम को लॉजिकल, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, तर्क बोलते हैं उसको, लॉजिक, और उसका मेथड के द्वारा उसको सॉल्व करता है। Adolescents can deal with hypothetical problems. They can speculate about many possible consequences. उनको ये पता रहता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या होगा, क्या नहीं। तो उनके अंदर उनकी जो बुद्धि है वो प्रगल्भ हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, वो सोचने लगते हैं। The ability to use deducting, reasoning, and an understanding of abstract ideas. This is the key hallmark of this stage. इस स्टेज का जो महत्व है कि इसमें बच्चों में डिडक्टिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज उनमें तैयार होता है। दिस स्टेज सीज इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग। ये जो स्टेज है उसमें साइंटिफिक रीजनिंग का जो गुण है वो बच्चों में आ जाता है। अब स्कीमाज क्या होता है? तो इट इज एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे inhabit. They are cognitive structures that represent a certain aspect of the world and can be seen as categories which have certain preconceived ideas in them. Schemas provide context of interpreting new knowledge. तो स्कीमा जो होता है वो ज्ञान को, बुद्धि को, बाहर के ज्ञान को अपने आत्मसात करता है और नए नए नॉलेज को फिर वो लेता है अपने अंदर। की कॉन्सेप्ट ऑफ पीएजेड, तो पीएजेड की जो थ्योरी है उसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एसिमिलेशन, पहला है एसिमिलेशन। थ्रू एसिमिलेशन वी टेक इन न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस and incorporate them into our existing ideas. तो जो एसिमिलेशन होता है वो नए इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करता है और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है उसके साथ उसको इनकॉर्पोरेट करता है। दूसरा है अकोमोडेशन। द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन इन्वॉल्व्स अल्टरिंग वंस एग्जिस्टिंग स्कीमाज और आइडियाज एज रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। तो नया नया जो अनुभव आता है जीवन में और उससे जो नया नया ज्ञान प्राप्त करता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको पहले के ज्ञान के साथ एडजस्ट किया जाता है, उसको अकोमोडेट किया जाता है। अब एक व्यक्ति के बारे में अपन सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो एक धारणा अपने मन में तैयार होती है कि ये व्यक्ति अच्छा है। बाद में उस व्यक्ति के द्वारा अपने को धोखा प्राप्त होता है। तो धोखा जो प्राप्त हुआ, तो पहले का जो ज्ञान था कि यह व्यक्ति अच्छा है, तो उसमें धोखा प्राप्त होने से पहले के ज्ञान में यह बाधित हो गया कि अरे ये तो मैं इसको अच्छा समझा था लेकिन ये तो बुरा निकला। तो जो नया अनुभव आया धोखा देने के बाद, जो नया बुरा अनुभव आया उसको फिर अकोमोडेट करते हैं और पहले अनुभव के साथ उसको भी जोड़ते हैं। तो पहला अनुभव क्या था कि यह व्यक्ति अच्छा है। अब जब बुरा अनुभव आया तो फिर क्या अनुभव हुआ कि यह व्यक्ति अच्छा भी है, बुरा भी है। तो अच्छा भी है और बुरा भी है, ये दो ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ। उसको फिर शरीर में
बुद्धि में अकोमोडेट करते थे। तो पहले का जो था सिर्फ वो व्यक्ति अच्छा है ये ज्ञान था। बाद में दूसरा ज्ञान आया, यह व्यक्ति बुरा भी है, तो उसको भी अकोमोडेट कर लेते हैं। तो फिर एक एक सिद्धांत तैयार होता है कि यह व्यक्ति अच्छा भी है और बुरा भी। इक्विलिब्रियम, mechanism of balancing between assimilation and accommodation is equilibrium. अब पहला जो ज्ञान प्राप्त किया उसको एसिमिलेट किया, आत्मसात किया, फिर दूसरा अकोमोडेशन किया, इसको दोनों को बैलेंस करना इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम हेल्प्स explain how children can move from one stage of thought to next. अब जो पहला जो स्टेज ऑफ थॉट है कि यह व्यक्ति अच्छा था, अब दूसरा जो स्टेज आया उसमें मालूम हुआ कि ये व्यक्ति बुरा है, तो ये फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए जो है बच्चों को इक्विलिब्रियम हेल्प करता है, वो एडजस्ट करने हेल्प एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन कैन मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू नेक्स्ट। तो किस तरह से दूसरे विचार में दूसरे स्टेज में हम मूव करना चाहिए, उसको इक्विलिब्रियम हमको मदद करता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन a balance between applying previous knowledge, that is called assimilation, and changing behavior to account for a new knowledge, that is called accommodation. तो ये दोनों को बैलेंस करने का काम इक्विलिब्रियम करता है। अब हम वैगोत्स्की नाम का जो भाषा शास्त्री है, वैज्ञानिक है, उसको हम पढ़ते हैं। तो वाइगोत्स्की's सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव, तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो सोशो कल्चरल थ्योरी के अनुसार पढ़ते हैं, तो इसमें सोशल फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। द वर्क ऑफ लेव वैगोत्स्की called as socio cultural theory. This theory became famous after 1990. Cognitive development is influenced by cultural and social factors. Parents, caregivers, peers, and the culture at large are responsible for developing brain's higher order functions. Learning is innately collaborative. सब लोग मिलकर पढ़ते हैं तभी लर्निंग अच्छा होता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। अकेले अकेले पढ़ने में और सोशल कल्चरल वे में कोलैबोरेट होकर पढ़ने में फर्क है। उसमें कोलैबोरेट होकर लर्निंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट not when they are isolated but develop fully with support than alone. तो alone अकेलेपन में जो बच्चा पढ़ता है उससे भी ज़्यादा वो मिलकर पढ़ेगा तो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा। Cognitive development occurs as a result of social interaction. जब बच्चे सोशल इंटरेक्शन करेंगे, समाज में व्यवहार करेंगे, समाज में घूमेंगे खेलेंगे, तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तेजी से होता है। तो वाइगोत्स्की ने एक इम्पॉर्टेंट थियरी बताई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको ZPD भी कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन what a learner can do without assistance and what a learner can do with adult guidance. तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, उसमें अकेला बच्चा पढ़ेगा, खुद का खुद खुद पे खुद बच्चा पढ़ेगा विदाउट एनी असिस्टेंट, कोई बिना हेल्प का पढ़ेगा, तो उसमें उतना वो डेवलप नहीं होगा। व्हाट ए लर्नर कैन डू विद एडल्ट गाइडेंस, अगर कोई बड़े व्यक्ति का उसमें गाइडेंस मिलता है उसको और वो पढ़ता है तो गाइडेंस के द्वारा वो जल्दी वो सब्जेक्ट को, विषय को जल्दी आत्मसात करके पढ़ता है। तो एडल्ट का गाइडेंस होने से जल्दी विकसित होता है, उसका ज्ञान जल्दी जल्दी बढ़ता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ रेंज ऑफ टास्क ए चाइल्ड कैन परफॉर्म विथ गाइडेंस दैट दे कैनॉट येट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। जो काम वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है
उसको अगर कोई गाइडेंस देता है बड़े लोग, तो उसको जल्दी वो स्किल को प्राप्त कर सकते। Tools of intellectual adaptation. Each each culture provides tools of intellectual adaptation. These tools allow children to use their abilities in a way that is adaptive to the culture in which they live. Intellectual adaptation tools vary from culture to culture. Intellectual cultural tools like language, counting system, mnemonic techniques, and art forms shape the way individuals think. मेंटल फंक्शंस, तो अभी जो कल्चरल टूल्स है वो क्या है? कल्चरल टूल्स आर मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी that children internalize through social interaction with more knowledgeable जो पर्सन है उसके साथ इंटरेक्ट होके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है जो बच्चे सीखते हैं उसको इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन कहते हैं। तो अब इसमें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि कुछ मेंटल फंक्शन भी बताए वाइगोत्स्की, उसमें एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन बताया। तो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन क्या है? इन्फेंट्स आर बॉर्न with elementary mental functions. They are four: attention, sensation, perception, memory. Attention, sensation, perception and memory, ये चार होते हैं। उसके बाद हायर मेंटल functions. Elementary mental functions develop into higher mental functions by interaction with social cultural environment. They are following. तो हायर मेंटल फंक्शंस क्या क्या है जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन से डेवलप होते हैं? वो है कॉन्शियस अवेयरनेस, वॉलेंटरी कंट्रोल, मीडिएटेड, सोशल इन ओरिजिन। तो कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब क्या है? इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस। वॉलेंटरी कंट्रोल का मतलब है दे कैन बी डेलिबरेटली यूज्ड एंड कंट्रोल्ड। Mediated, they involve the use of cultural tools or science like language. Socially original, they develop through social interaction. अब वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या क्या है वो हम देखते हैं। इनर स्पीच, अब बच्चे कई बार अपने आप में मन में बात करते हैं, बोलते हैं, उसको इनर स्पीच बोलते हैं। इनर स्पीच इज थिंकिंग इन प्योर मीनिंग्स। It is used for mental reasoning. It is a typical at the age of 7. तो जो बच्चा 7 साल का होता है, 7 years का जब बच्चा होता है, तो उसमें एक इनर स्पीच की क्वालिटी आती है। वो अपने आप मन में सोचता है, बात करता है। इनर स्पीच मतलब अपने मन से वो बात करता है। कभी कभी अपन देखते हैं बच्चे अपने आप अकेले में अपने आप बात करते रहते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल रीजनिंग। तो कोई विषय को समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए बच्चा क्या करता है? अकेले में अपने आप से बात करता है, उसको इनर स्पीच बोलते हैं। ये 7वें साल में ये आता है बच्चे के अंदर, 7th ईयर। सोशल स्पीच, इट इज टिपिकल फ्रॉम एज 2। जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 years, तो वो सोशल स्पीच करने लगता है, लोगों से बात करने की प्रयास करने लगता है। प्राइवेट स्पीच, it is a form of self-talk that guides the child's thinking and action. Private speech is typical at the age of 3. तो थर्ड एज के बाद वो अपने से सेल्फ टॉक करने लगता है। इट इज ओवर्ट, ऑडिबल एंड ऑब्जर्वेबल। अब पहला जो इनर स्पीच बोला है वो मन के मन में बात करता है, बच्चा मन में बात करता है। ये जो प्राइवेट स्पीच है इसमें जो बात वो करता है दूसरे को भी सुनने आता है। आप अपन देखते हैं कि कोई अकेला बच्चा है, कुछ खेल रहा है, काम कर रहा है, अकेला है, तो बात कर रहा है, तो अपने को सुनने को भी आता है कि वो क्या बात कर रहा है, अपने आप से बात करते रहता है, लेकिन वो जोर जोर से बोलता है। तो प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इनर स्पीच में क्या होता है कि वो अपने मन से बात करता है,
वो अपने को सुनने नहीं आता, इसमें प्राइवेट स्पीच में सुनने आता है कि वो बात कर रहे हैं अपने मन से। इंटरनलाइजेशन, this is central concept of Vygotsky's theories. It bridges gap between social interaction and individual cognitive development. It is process by which external socially mediated activities are transformed into internal mental processes, allowing individuals to acquire new knowledge and skills. अब उसके बाद आया scaffolding. Scaffolding is a theory that focuses on a student's ability to learn information through the help of more knowledgeable other. तो जो एडल्ट होता है वो बच्चों से ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, तो बच्चे अपने से बड़ों से सीखते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है? To more knowledgeable other, anybody, can be it is teacher, it can be peer, it can be caretaker, it can be instruction, it can be encouragement. So more knowledgeable other, matlab anybody who can give the knowledge, that is called, it can be teacher or caretaker or anybody. Making meaning. Community plays a central role of process of making meaning. Culture, language, and social interactions. Social interactions is based on the idea that cognitive functions are the product of social interactions. अब हम चलते हैं ब्रोनफेन बर्नर, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सेल्फ एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो ब्रोफेन बर्नर करके भी एक शिक्षा शास्त्री हुआ था, उसकी भी थ्योरी है जो इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी ऐसा कहा जाता है इसमें। तो ब्रोफेन बर्नर theory is known as ecological system theory. He proposed human development is influenced by environmental forces. तो ब्रोफेन बर्नर क्या कहता है कि जो environmental forces है उससे influence करता है human development. The ecological theory focuses on the social context in which children live and the people who influence them. तो जो इन्वायरमेंट है तो वो अपने को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा ब्रोनफेन बर्नर का कहना है। ही डिवाइडेड पर्सन इन्वायरमेंट इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स। तो उन्होंने जो पर्सनल इन्वायरमेंट है उसको 5 अलग अलग लेयर में उन्होंने डिवाइड किया है। तो जो अपना इन्वायरमेंट है उसको 5 लेयर में उन्होंने डिवाइड किया। एक का नाम है माइक्रो सिस्टम, ये इन्वायरमेंट का जो टाइप है उसका नाम है माइक्रो सिस्टम। It is very closest to the child and contains the structure with which the child has direct contact. तो जो माइक्रो सिस्टम है ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चे का कांटेक्ट डायरेक्ट रहता है, जैसा फैमिली, स्कूल, नेबर्स, पीयर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स। Relationship have impact in 2 directions, away from the child and towards the child. In microsystem, your reactions to the people in your microsystem will affect how they treat you in return. Microsystem has the most direct immediate impact on the individual. तो माइक्रोसिस्टम में क्या होता है, हमारे जो डायरेक्ट हमारे जो संबंध है फैमिली से, स्कूल से, टीचर से, उससे ये संबंधित रहता है और हम लोग सीखते हैं उनके द्वारा, और जैसा आप उनको एक्शन करेंगे वैसे ही हमको रिएक्शन मिलेगा, जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार हमको वैसा मिलेगा। अब दूसरा जो इन्वायरमेंट का लेयर है उसको मेसो सिस्टम बोलते हैं। मेसो सिस्टम, सेकेंड लेयर ऑफ इन्वायरमेंट। दिस लेयर प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द child's microsystem, the connection between child's teachers and his parents. Parent-teacher communication, school-neighborhood connection can impact learning and academic performance. तो जो ये सेकेंड लेयर ऑफ इन्वायरमेंट है इसमें बच्चों का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, साथ में इनडायरेक्ट कनेक्शन भी रहता है। जैसा जो टीचर है उसका बच्चों के माँ बाप के साथ जो कनेक्शन रहता है उसको मेसो सिस्टम बोलते हैं। टीचर का और बच्चों के पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन उसको मेसो सिस्टम बोलते हैं। थर्ड है
Exosystem, third layer of environment. It defines the larger social system in which the child does not function directly. The exosystem incorporates other formal or informal social structures such as local government, friends of the family, mass media, public transportation, school board decisions, local community organizations, parent workplace, etc. तो ये जो थर्ड लेयर का एनवायरनमेंट है, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन बच्चों का नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्शन कनेक्शन होता है, इनडायरेक्ट, जैसा लोकल गवर्नमेंट का है, फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल बोर्ड डिसीजन है, लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ का भी इन्फ्लुएंस बच्चों पे होता है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है। जैसा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अब बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो उनका शिफ्ट हो जाते हैं, वो लोग, उनका जो जॉब है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहा है एक बच्चा, तो उसको भी अपने माँ बाप के साथ जाना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर नया जगह, नया वातावरण, उसमें उसको एडजस्ट होना पड़ता है, तो ये भी उसके पढ़ाई को अफेक्ट करता है कि उसका अ, जो माता पिता, गवर्नमेंट के रूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों का भी उसके ऊपर बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है मैक्रो सिस्टम. Macro system focuses on how cultural elements affect a child's development in a society. Cultural norms, expectations, socio-economic factors, healthcare, technological advancement, religion, and philosophical ideologies are important here. तो मैक्रो सिस्टम जो होता है उसमें जो कल्चरल वैल्यूज है, कस्टम्स है, लॉज है, वो भी इसमें अफेक्ट करते हैं बच्चों की पढ़ाई में. This layer is comprised of cultural values, customs and laws. बच्चे के माँ बाप, बच्चे का परिवार कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, उसका समाज, उसका उठना बैठना, उसके समाज में घूमना, वो किस प्रकार का बैकग्राउंड उसमें है, कल्चरल बैकग्राउंड, ये भी उसके पढ़ने में अफेक्ट करता है, इसको माइक्रो सिस्टम होता है. अब आखिरी जो है वो है क्रोनो सिस्टम. क्रोनो का मतलब है टाइम. This system encompasses the dimension of time as it relates to a child's environment. Physiological changes that occur with the aging of child. As children get older, they may react differently to environmental changes and may be more able to determine more how that change will influence them. A parent's promotion, job loss, job loss by providing member will have very high impact. तो क्रोनो सिस्टम का मतलब है, क्रोनो मतलब टाइम, तो समय के हिसाब से अपना जो है परिवेश बदलते रहता है, तो बच्चों को भी वो अफेक्ट होता है पढ़ाई में, उसको एडजस्ट करना पड़ता है नए नए परिवेश के साथ. तो इसलिए समय के साथ जो बदलता हुआ परिवेश है उसको भी बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है, और वो भी उसके पढ़ाई में अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको क्रोनो सिस्टम बोला है. क्रोनो मतलब टाइम. अब इसमें क्या क्या होता है, पेरेंटल डाइवर्स, चेंजिंग स्कूल्स, पेरेंट्स रीलोकेट फॉर जॉब, तो रीमैरिज, तो बच्चे देखते हैं कि माता पिता का डाइवर्स हो गया, तो सिचुएशन बदलता है, मानसिक रूप से उनको एडजस्ट होना पड़ता है. चेंजिंग स्कूल्स, कोई माता पिता ऐसे होते हैं कि जिनका जॉब हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता है, तो बार बार स्कूल को चेंज करना, नए नए लोगों के साथ मिलना, उनको समझना, तो ये सारी चीज़ें भी क्रोनो सिस्टम में आती है, ये भी अफेक्ट करती हैं बच्चों को. तो ये ब्रोनफेन-बर्नर ने इस तरह से जो है 5 इन्वायरमेंटल लेयर बताए जो बच्चों के पढ़ाई को अफेक्ट करते हैं. तो इस तरह से आज हम ये जो लेसन है उसको हम पूर्ण कर पाए. तो हम अभी इसके बाद दूसरा लेसन भी लेंगे. तो दूसरा जो लेसन उसका नाम है एंड्रागॉगी. एंड्रागॉगी इज ए 7th चैप्टर. एंड्रागॉगी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ एंड्रागॉगी,
need and importance of andragogy, principles of andragogy, characteristics of adult learners, competencies of self-directed learning.